This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Am I audible? Okay, starting with you, Subeta. What is the progress of your application? I have completed. Okay. So have you done the among your group? Have you progressed the documentation part? Ma'am, Huh. Yes. actually I have few doubts on few points. So Okay. can I ask, Definitely. ma'am, like what is feasible study? Feasible study मतलब है SDLC तुम लोग पढ़े हो? Software Development Life Cycle. No, ma'am. No, actually. Okay, let me show you that. See, this is basically the feasibility study. Means how much it will be, means whatever the app project application you are building, and that is basically a software or a system. So ये सिस्टम बनाने में कितना मतलब कितना फायदा होगा, कितना फिजिबल होगा इस सिस्टम जब लॉन्च करेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. So those points need to be discussed within this. So that is all about the feasibility study. So इसीलिए feasibility study के अंदर तुम लोग को तुम्हारे ऐप के अकॉर्डिंगली जो फिजिबल पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स रेलिवेंट है तुम लोग के ऐप के अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सारा चीज ये फिजिबिलिटी स्टडी के अंडर में मेंशन करना है. समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट आउट. नेक्स्ट पूछो सिंपली, और क्या पूछना है? Ma'am, what about workflow? Workflow diagram. Workflow. See, when we used to progress on the app, we need to undergo some diagram. So that is basically known as workflow diagram. दिखा रहे हैं. Something I'm giving you an example like this one. No, not exactly this one. Like this sort of things. See, let me show you. SGLC मीन्स बेसिकली ये पूरा सारा जितना टॉपिक हम मेंशन किए पूरा ही SGLC का पार्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स रहते हैं.
डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेजेस रहते हैं जो डिफाइन करते हैं डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू, लाइक वाटर फ्लो डायग्राम, स्पाइरल डायग्राम, इंटीग्रेशन डायग्राम, दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स. नाउ तुम लोग का जो ऐप बन रहे हैं वो कौन सी टेक्निक के बेसिस में बन रहे हैं, वो चीज तुम लोग को मेंशन करना पड़ेगा ये वर्कफ्लो डायग्राम के अंदर. So basically you need to study a bit regarding this different diagrams under SDLC workflow model, and जो तुम लोग को relevant लगे तुम्हारे ऐप के अकॉर्डिंग वो चीज इधर मेंशन करना पड़ेगा. Am I clear? Yes, ma'am, you're clear, but it's quite difficult to make diagram for to-do list, you know. Now to do list तुम लोग का ऐप है. Okay, so to do list के लिए तुम्हारा basically to do list, right? So for that I think waterfall model will be the perfect one. I'm showing you which one is waterfall model. Your waterfall. This is basically the waterfall workflow. Means directly तुम लोग क्या क्या requirement है वो सर्च अप करो, देन उसके साथ कैसा कैसा डिजाइन करना है, मतलब उसका प्लानिंग कर ले रहे हो, लाइक DFD and all those database diagram, all those planning you are doing. Finally you are coding, that is implementing your thing. Then your verification means testing karo, and then finally maintenance and the development of your application. So I think for you guys, for this particular project, waterfall diagram will be the perfect one. Okay, ma'am. Now इसमें waterfall diagram बहुत सारा waterfall diagram है, मतलब more or less steps are all same. Just तुम लोग को जो relevant लगे, जो steps relevant लगे, उस हिसाब से वो diagram just तुम लोग इधर mention कर सकते. So the next, और बोलो और क्या doubt है? Ma'am, number 3, that is system design. कौन सा design? System design. सिस्टम डिजाइन. अच्छा, सिस्टम डिजाइन के अंदर देखो बहुत सारे पार्ट्स है, लाइक एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑल दिस थिंग्स वेर देयर. Yes, ma'am, those points are not clear to me. अच्छा, ये डायग्राम्स तुम लोग DFD बनाए हो क्या? I don't know. You are from CSC student, so I hope तुम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा होगा या है आगे, या इस सेमेस्टर में मे बी. No, ma'am. Not in this semester, ma'am. अच्छा, तुम लोग कभी कौन से सेमेस्टर में हो? Ma'am, pardon, please. In which semester you are in currently pursuing? Fifth. Fifth. Okay. So fifth semester. So I think तो होना चाहिए. अच्छा, whatever. DFD. अच्छा, तुम लोग को ये सारा डायग्राम, इसमें से कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता. That means right? Yes, Yeah, ma'am, we yes. don't. Okay, fine. So if you are hearing this thing for the first time, so I will say you, ये तीन तो optional पहले ही हम mention कर चुके, but this DFD is a compulsory one. So I'm showing you how to draw DFD. या DFD के लिए क्या क्या rules follow करना पड़ते हैं, क्या क्या है नहीं है, वो हम थोड़ा discuss कर लेते हैं. So what is basically DFD? DFD is a short form of data flow diagram. Okay, so इस डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं? इस डायग्राम के थ्रू we just point out the flow of information from any process or any system. मीन्स एक सिस्टम में कैसा प्रोसेसिंग हो रहा है, कौन सा फ्लो हो रहा है, किसके बाद कौन सा फ्लो हो रहा है, वो एज अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट में वो फ्लो को मेंशन जब करते हैं, उस चीज को हम लोग
DFD या डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं. Now this DFD can be created in separate levels. जैसे एक के बाद एक levels होते हैं, starting from 0th level it goes on. So enough to draw this since I'm saying it's a diagram. So तुम लोग शायद बचपन में flow chart पढ़े होंगे. Simple एकदम flow chart. I hope you guys have studied it in computer. Yes, ma'am. तो फ्लो चार्ट में कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स रहता था ना, जैसे ओवल या रेक्टेंगुलर या राउंडेड रेक्टेंगुलर या डायमंड, ऐसा सिंबल्स रहता था. आई होप यू रिमेम्बर, इफ नॉट Yes, ma'am. क्लियरली बट थोड़ा बहुत तो याद होगा. सो सिमिलरली डेटा फ्लो डायग्राम में भी कुछ सिंबल्स, स्पेसिफिक सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जिस सिंबल्स के थ्रू से हम लोग इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं. So for this I will ask you to refer the gig for gigs the thing जहां इस डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे. इसमें से हम सिंपल एक डेटा फ्लो डायग्राम, बेसिकली ये तीन चीज यूज होते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म टू रिप्रेजेंट हु इज द यूजर, and then ये just a two line, and within this it represent the data storage means warehouse. ये प्रोसेसिंग सर्कुलर या ओवल शेप में जो देते हैं उसको प्रोसेसिंग, और रेक्टेंगुलर शेप में जो मेंशन किया जाते हैं उसको बेसिकली बोले जाते हैं जो एंड यूजर होते हैं, चाहे वो एडमिन हो, टीचर हो, फैकल्टी हो, या जो भी हो, जो भी नॉर्मल यूजर जो भी हो, उस चीज को, उस पर्सन को रिकॉग्नाइज या फिगर आउट करने के लिए हम लोग ये रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स यूज करते हैं ना. ये जो वर्क फ्लो मीन्स एरो से मीन्स लाइन विद एन एरो, इसको बोला जाता है फ्लो लाइन. जैसे फ्लो डायग्राम में था मीन्स नॉर्मल फ्लो चार्ट में होता था, इस हिसाब से इधर भी फ्लो लाइंस मेंशन किया जाते हैं, और फ्लो लाइंस के साथ उसके किस तरीके का ये डेटा फ्लो हो रहा है, सो वो चीज मेंशन किया जाता है विया द इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट. नाउ हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं जिसके थ्रू people can understand. तुम लोग को सिर्फ एक ही लेबल DFD, सिर्फ एक लेवल DFD बनाना है, जिसको हम लोग जीरो लेवल DFD बोलते हैं, या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम इधर मेंशन किया वैसे, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या जीरो लेवल DFD जिसको बोला जाता है. तुम लोग को सिर्फ वही DFD बनाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर एक एग्जाम्पल देख सकते हो जो बेसिकली है तुम्हारा रेलवे रिजर्वेशन के ऊपर. ना दिस सिस्टम जो सर्कुलर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, इसको बोला जाता है द प्रोसेसिंग मींस एज अ होल. जीरो लेवल DFD में इसको हम लोग ऐप या सिस्टम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली बोली कि उन लोग टू डू लिस्ट बना रहे हैं, सो मे बी योर ऐप नेम इज टू डू लिस्ट, maybe your app name is, so you need to mention over here to do list in this circle. Now कौन यूज करेगा? एक यूजर होगा जो यूज करेगा, एंड उसका कोई एडमिन पार्ट मान लो नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग. और या एडमिन है तो एडमिन भी ऐसे सर्कुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेंशन किया जाते हैं हु इज एक्चुअली यूजिंग दिस सिस्टम, this app, who will be using this app, that is been represented by this rectangular shaped symbol. जैसे एक रेलवे रिजर्वेशन कौन यूज करते हैं? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो पैसेंजर होते हैं, हम लोग जैसे जो रेल में ट्रेवल करते हैं, सो वी पीपल आर पैसेंजर्स, दोज हु यूज टू यूज दिस सिस्टम. और कौन उसको मैनेज करने के लिए और कौन यूज करते हैं? एडमिन स्टाफ्स होते हैं जो इस सिस्टम को मैनेज करते हैं. सो पैसेंजर और इस सिस्टम के अंदर जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग इनफ्लो लाइन से, ये फ्लो लाइन से हम लोग मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल पैसेंजर कैन बुक अ टिकट, तो वो क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं,
जब रिजर्वेशन हो जाएगा उसको उसके पास क्या वापस जाएगा, डेटा आउटफ्लो क्या होगा सिस्टम से, टिकट इंफॉर्मेशन इज द डेटा आउटफ्लो। अगर पैसेंजर चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट ऑपरेशन the passenger can perform on railway reservation app. Similarly, admin side से अगर देखेंगे तो admin क्या कर सकते हैं, जितना भी ट्रेन्स है, जितना भी ट्रेन्स चल रहे हैं, उस ट्रेन्स का इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकते हैं या वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ना जो कैंसिल हुए या जो रिजर्वेशन हुए टिकट्स का, वो सिस्टम में स्टोर है, वो चीज एडमिन के पास एक रिकॉर्ड जाएगा। अगर एडमिन देखना चाहे तो वो रिकॉर्ड को वो रिट्रीव कर सकते हैं। सो इसीलिए ये इनफ्लोज इधर इनफ्लो हो रहे हैं एडमिन के पास। अगेन सिस्टम के साथ क्या आउटफ्लो हो रहे हैं, अगर एडमिन चाहते हैं कि पैसेंजर कौन कौन रिजर्व किया इस पैसेंजर लिस्ट को देखने के लिए, तो वो सिस्टम से पैसेंजर लिस्ट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन वो एडमिन देख सकते हैं। तो ऐसे करके जितना भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं means between the admin or the system or maybe passenger and the system, वो चीज हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो ये जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैपिंग हो रहे via the symbols, this as a whole known as the data flow diagram, in short DFD बोला जाता है। Am I clear ना? इससे Yes, समझ ma'am. में आया? Yes, तो ma'am. इससे तुम लोग को जॉट डाउन करना है कि तुम लोग एज कौन कौन यूजर है, तुम लोग का एडमिन है कि नहीं, एंड यूजर पैसेंजर है कि क्या है, जो भी है उस हिसाब से तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। और तुम लोग का जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहे सिस्टम के साथ, वो चीज तुम लोग को ऐसे जो इनफ्लो होगा या जो आउटफ्लो होगा उस हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। ओके फाइन। सो नेक्स्ट डीएफडी के बारे में किसी को और कोई क्वेरी है? तुम लोग सिस्टम डिजाइन जो चैप्टर है उसके अंदर और कुछ करो या ना करो, ये चीज मेंशन करना ही पड़ेगा। आई मीन डीएफडी को ड्रॉ करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ऐप। सो इसीलिए अगर किसी को कोई क्वेरी डीएफडी के बारे में कुछ डाउट या कुछ है, देन यू कैन आस्क मी। सो आई होप देयर इज नो डाउट। तुम लोग ड्रॉ करो, डीएफडी को ड्रॉ करके मेरे को दिखाओ कि सही है नहीं है। देन अगर कोई रेक्टिफिकेशन या कुछ करने, अगर रॉन्ग हुआ तुम लोग का ड्राइंग, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो इसीलिए तुम लोग ड्रॉ करो अभी रफली पेन एंड, हाँ बोलो। Admin part is not compulsory, no? नो देखो हर एक ऐप में एडमिन पार्ट होगा इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूजर भी तो हो सकते हैं। जनरली टू डू लिस्ट जो तुम बोल रही हो, वो लिस्टिंग में तो एडमिन का कोई रोल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट को सेव कर लेते हैं, जब चाहते हैं हम लोग खुद ही लिस्ट को देखते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडमिन। बट जैसे रेलवे रिजर्वेशन या एयरपोर्ट रिजर्वेशन या मान लो फूड डिलीवरी ऐप, ये सब में क्या, या शॉपिंग ऐप, ये सब में एडमिन पार्ट का जरूरत है। देयर इज एन एडमिन पार्ट। सो डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे ऐप कौन कौन यूज कर रहे, उसके ऊपर ये डायग्राम, उस हिसाब से तुम लोग का एंड यूजर्स मींस रेक्टेंगुलर शेप करके यूजर कौन कौन है वो मेंशन करना पड़ेगा। सो हम ये तुम लोग को सजेस्ट करेंगे, तुम लोग पेन एंड पेपर में पहले डीएफडी को ड्रॉ कर लो। अगर कोई मॉडिफिकेशन और मेरे को दिखाओ, अगर कोई मॉडिफिकेशन या कुछ करने है तो हम तुरंत तुम लोग को बोल देंगे वैसे मॉडिफिकेशन करना, एंड देन फाइनली यू ड्रॉ इट इन योर डॉक्यूमेंट विया
MS वर्ड से भी कर सकते हो ड्रॉ डायग्राम, या पेंट से भी कर सकते हो, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लाइक विजुअल पैराडिग्म, लुसिडिन, देन draw.io, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके, फ्रीली यूज करके उसमें भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो DFD को। इट्स टोटली अप टू योर ओन चॉइस, कैसे तुम लोग ड्रॉ, किस सॉफ्टवेयर से तुम ड्रॉ करना चाहते हो। So the next query, Dimpy, sorry, Simpy. Yes, ma'am. Database design. डेटाबेस डिजाइन, अच्छा डेटाबेस डिजाइन तुम लोग फायरबेस यूज कर रहे हो, राइट? Yes, ma'am. सो तुम लोग फायरबेस का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, या जस्ट ऐसे फ्लो टाइप मेंशन करके दे भी सकते हो, मींस लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर करके भी दे सकते हो, क्या क्या है नहीं है वैसे भी मेंशन कर सकते हो। Features. फीचर्स नहीं, जैसे डेटा फ्लो, अच्छा हम दिखा देते हैं, एक एग्जांपल दिखा देते हैं, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक दिस, अगर तुम लोग चाहते हो ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, या ऐसे करके तुम लोग का टेबल स्ट्रक्चर या कलेक्शन स्ट्रक्चर या डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर है ऐसे भी करके मेंशन कर सकते हो। If you people required, you can take a screenshot of this also. Ma'am, the same diagram can be used, no? Sorry, The same diagram can be used. No? द सेम डायग्राम, ये सेम डायग्राम तो तुम लोग का नहीं होगा, बिकॉज तुम लोग का पोस्ट वगैरह तो है नहीं, तुम लोग का लिस्ट है, लिस्ट के अंदर यूनिक लिस्ट या जो Yes, भी ma'am. That is पैरामीटर्स है उस modified. हिसाब से होगा। Hmm. Yeah, that is modified, but the tree like structure तो obviously tree like structure तो ऐसे ही define करोगे। Okay. Now the next query, Testing and maintenance. testing or maintenance, okay, coming to that point. सो टेस्टिंग में पहले तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होते हैं नहीं होते हैं वो चीज मेंशन करोगे, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग तुम लोग को मिल जाएगा, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये चीज मिल जाएगा। Anywhere you can find within Wikipedia or anywhere you can find it out. Okay, so इधर से देख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग का वो भी मिल जाएगा तुम लोग को, so you can check it out from there. Now I'm coming to the test cases part जो हम mention किए थे, test cases का हम ये sample दिखा रहे हैं। So this is a sample of test case number मान लो केस नंबर 1 है, ये कौन सा टेस्ट केस किस स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, किस एक्टिविटी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, वो एज अ टेस्ट केस नेम मेंशन कर सकते हो। देन व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेस्ट केस, इस केस ये स्क्रीन के ऊपर क्या क्या ये स्क्रीन, व्हाट इज द रेलिवेंट ऑफ रेलिवेशंस और द रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्क्रीन, जो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में देने हैं वो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दो।
कौन परफॉर्म कर रहे उस मेंबर का नाम दो. ये टेस्टिंग कौन परफॉर्म कर रहे इस पर्टिकुलर टेस्टिंग उस पर्सन का नाम दो via the test performed by that name. Now क्या क्या आइटम टेस्ट करने हैं, क्या है सक्सेसफुल साइन इन हो रहे या नहीं, प्रॉपरली डायरेक्ट हो रहे कि नहीं डेजिग्नेटेड पेज में, ये चीज. ये हम सैंपल दिखा रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग, आई एम शोइंग यू अ सैंपल. तुम लोग का माइट भी स्लाइड डिफरेंट हो भी सकते हैं एंड डेफिनेटली अपॉन द स्क्रीन इट विल डेफिनेटली डिफर. नाउ क्या क्या इनपुट डाल रहे हो एंड क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है. ये प्रोबेबल इनपुट एंड आउटपुट है. ये एक प्रोबेबल एक्सपेक्टेड आउटपुट. क्या वो आउटपुट रियली में हो रहे. सो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट क्या हो रहे वो तुम लोग इन मींस व्हाट टू से इन लाइन मैनर में मींस ऐसे पॉइंट्स वाइज पे लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट से, ऐसे जैसे लोग स्क्रीनशॉट से प्रोवाइड किया है वैसे भी तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो. So this is, you can take this as a sample of it. Ma'am, बोलो. there is no signing like thing in our project. So what we'll do Okay. then? Now, तुम लोग का प्रोजेक्ट में जो टू डू लिस्ट ऐप है उसमें क्या क्या फीचर्स डाल रहे हो वो बोलो, फिर हम बता पाएंगे. That Rashmi can explain properly, but she's not well. But then also, I don't think it's a complicated one. It's a simple Okay. to-do list. Okay, so means what kind of information you are storing or something. Maybe शायद तुम लोग का कोई बटन या कुछ होगा कि Yes, ऐप ma'am. खोलने पर ही तो ऑब्वियसली क्या नॉर्मली जो लिस्टिंग ऐप होते हैं उस रेफरेंस से हम बोल रहे हैं. व्हेन वी क्लिक ऑन दैट ऐप, जो भी नोट्स या जो भी लिस्ट नोट्स बेसिकली हम सेव कर चुके हैं वो जनरली नोट्स पहले अवेलेबल हो जाते हैं इन विच एवर फॉर्म, लीस्ट फॉर्म, ग्रिड फॉर्म, जैसा भी हो वैसा नोट्स अवेलेबल होते हैं. Now if we click on that notes, we can view that note or we can modify that note or maybe we can delete that note. This is the feature. नेक्स्ट फीचर क्या होते हैं, मे बी उधर कोई एक बटन रहते हैं जिस बटन में क्लिक करने पर हम लोग नया नोड ऐड कर सकते हैं, नया लिस्ट ऐड कर सकते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दैट बटन, वो जो एक स्क्रीन अपीयर होते हैं जिसमें फिलअप करना रहते हैं एंड देन यू हैव अ बटन टू सेव दैट डेटा और समथिंग. सो उसमें जब क्लिक करते हो सेव डेटा होते हैं. सो वो सेव डेटा सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑल द फिल्ड्स ब्लैंक, कोई भी फील्ड मींस जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है मे बी कुछ उसमें से फिल्ड हो सकते हैं, वो ऑप्शनल फील्ड हो सकते हैं और कुछ कुछ फील्ड होते हैं एकदम कंपल्सरी फील्ड होते हैं. सो दिस फील्ड्स आर getting saved or not, correct data properly placed on or या नहीं, correct data in correct fields are there or not, and then save button सही सही save कर रहे data या नहीं. in case वो save button पर क्या होना चाहिए, सेव डेटा सेव हो जाना चाहिए अगर सारे इनपुट सही सही है. अगर नहीं है तो एक एरर दिखाना चाहिए कि सेव नहीं हो पा रहे या कुछ, या ये इश्यूज के कारण सेव नहीं हो रहे. दिस थिंग्स वी यूज टू गेट फ्रॉम अ नॉर्मल लिस्टिंग ऐप. Ma'am, so the name of the test case would be saving data. Am I Yeah, right? that can be. Yeah, that can be. Or saving button. Saving button nahi, obviously this is test case name, so you can new data on saving new means new list or something like that, you can mention a new node, you can mention like that. Or we can take any name in the column test performed by now. टेस्ट और परफॉर्म वो बाय जो मेंबर तुम लोग के ग्रुप के जो मेंबर ये टेस्टिंग कर रहे हैं वो उस मेंबर का नाम दे सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी हु इज बिल्डिंग द ऐप that person is only testing. It might be anyone else is also testing. It can be. Okay, ma'am.
Any more thing? Number 6, Number 6. Number 6. security measures. Number 6. अच्छा, सिक्योरिटी मेजर्स, डेटाबेस सिक्योरिटीज के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे रियल टाइम डेटाबेस या क्लाउड स्टोरेज जो भी यूज करो, क्लाउड फायर स्टोर जो भी यूज करो. आई होप यू रिमेम्बर दैट देयर वाज अ प्लेस कंसोल, there was a place which is actually means कितना limitation है क्या, या what is the limitation for using, means what are the rules for using this real time database, कब तक ये valid है, कैसे secured कर रहे, ये सब rules है ना, इसमें भी है, real time database में भी है, again cloud firestorm में भी है. So this way we are securing the data, means हर किसी को read write permission हम लोग नहीं दे रहे, जो authenticate user हो रहे उसी को read write permission दे रहे, ऐसे करके कुछ rules mention कर रहे, या ये database just for this time being valid है. So ऐसे करके हम लोग कुछ जो security measures ले रहे उसी चीज को mention करना पड़ेगा on the database security part. ना सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पार्ट में क्या मेजर्स ले रहे, मान लो कुछ परमिशंस लेना हो तो परमिशंस ले रहे, लाइक सिस्टम परमिशंस, और मान लो रीड राइट स्टोरेज परमिशंस फ्रॉम द यूजर ले रहे, सो दैट वी कैन that without user permission the data will not be stored or something like that. In that way we are securing our data as well as we are securing users data, ताकि वो डेटा बाकी के बाहर के लोग मीन्स अननोन यूजर ना देख पाए, जो ऑथेंटिकेट यूजर होगा वही सिर्फ देख पाएगा. So in that way we are securing this particular thing. Now last thing is that limitation. तुम लोग का सॉफ्टवेयर का लिमिटेशंस क्या है वो चीज मेंशन करना पड़ेगा. Each and every app has some advantage and disadvantage. So what is the disadvantage of your app? What is the limitation of your system? That you need to mention under this limitations of software or system. Am I clear now? Can you explain database security measures once again? Yeah. Database security measures, in case of database, whatever database you are using, every database to get access into the database we need to follow some rules and regulations. Like हर कोई read या राइट नहीं कर सकता हम लोग का डेटाबेस. देयर इज सम लिमिटेशंस कि कितना तक ये कौन कौन रीड कर सकते हैं और कितना दिन तक रीड या राइट कर सकते हैं इस डेटाबेस को. सिमिलरली इन केस ऑफ Firestore also, if you are not using real time database, if you are using Firestore, there is also some options, some rules we have said that everyone cannot read our data, only authenticate user can read our data. So allow read and write if only request time is something or the user is something. So ऐसे करके हम लोग मीन्स हम लोग का डेटाबेस को सिक्योर कर रहे फ्रॉम द आउटसाइड यूजर. कोई और डेटाबेस के साथ हम लोग का डेटाबेस कोलैबोरेट ना करे, they don't mix out the things. So we are securing the data with the particular database name, and then the documents and then the collection we are securing with the proper conditioning. Am I clear now? Now Yes, I'm or clear. in details और थोड़ा देखना है, so you can go to the docs and you can find out the things, rules over there. Exact rules जो है नहीं है related to database in which you are storing your data, you can check it out there. So from here also view the docs करके तुम लोग कैसे गार्ड करो, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो तुम्हारे डेटास को
You can check it out in this view the docs. Now what else? Ma'am, everything is clear. Okay, any more query from No, any ma'am. other part of no? Okay, now what is the Hello, progress ma'am. of your app? What is the progress of your app, Simpy? I'm 80% completed. 80% completed. Okay, क्या तुम लोग कभी दिखाना चाहते हो या कुछ, या फाइनली कल दिखाना चाहते हो? Ma'am, today we won't be able because Rashmi is not there, no? Okay, so Rashmi is basically doing this thing. Yes, ma'am. Acha, okay. So Documentation part is mine. Acha. So accordingly divide your work among you and your group, and then accordingly update me tomorrow. जो भी जितना भी प्रोग्रेस है कल सबमिट नहीं करना है, जब डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज ऐप का जितना भी प्रोग्रेस है कल मेरे को दिखाओ. Okay, ma'am. Okay, हेलो fine. मैम. हेलो. Yeah, yes, Aftaf. हाँ बोल रहा ना मैम. क्या बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट में जो मेरा प्रोसीजर आया हुआ था, ड्रॉअर एक्टिविटी जो होता है ना, स्लाइड करके लाते उसमें, तो वो एक्टिविटी जब मैंने क्रिएट किया ना, तो मैम तो जो एक्सएमएल फाइल उसका होता है ना, वो क्रिएट नहीं हुआ, उसका जो स्क्रीन एरर हो गया. तो मुझे लगा दोबारा से करना चाहिए बोल के मैं वो फाइल को डिलीट करके फिर से दोबारा से जब क्रिएट करने लगा ना, तो दोबारा से बहुत ज्यादा उसमें एरर आने लगा. अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या एरर हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ. मैं परेशान. एक काम करो, तुम एज अ होल एक नया प्रोजेक्ट बना लो, क्योंकि उसमें वो हाफ डन प्रोजेक्ट है ना, तो शायद सिंकिंग नहीं हुआ होगा और बीच में तुम शायद डिलीट कर दिए थे फाइल, तो इसीलिए बहुत सारा. हाँ, एग्जैक्टली. तो सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन यही होगा कि उसमें से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं, बट बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत क्या मैम, नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू कि मे बी शायद उसमें कुछ पार्ट तुम्हारा बन चुका है, बट फिर भी एक नया प्रोजेक्ट बना लो. नया प्रोजेक्ट बनाकर उसमें जो पार्ट एकदम करेक्टली बन चुके हैं उसको कॉपी पेस्ट कर दो नया प्रोजेक्ट में. कोड को, फाइल्स को नहीं, कोड को कॉपी पेस्ट करो. यस मैम, यस मैम. प्रोसीजर तो मैं समझ गया, कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ. हाँ, तो वही मैं कर देखना, रहा हूँ. लास्ट में सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं. इंटरनेट ऑन करके ये ड्रॉ नेविगेशन वगैरह जो भी अप्लाई करोगे ना, थोड़ा इंटरनेट ऑन करके तब जाकर सिंक करना. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरनेट ऑफ करके एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते, ये अलाउड है, बट कुछ फाइल शायद मिसिंग कुछ होते हैं, तो इसीलिए ड्रॉ नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन, ये सब चीज जब यूज करोगे, सो ट्राई करो इंटरनेट ऑन करके फिर इसको प्रोजेक्ट को सिंक करना. मैम ये चीज मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बिना डेटा के ही मैं काम कर रहा था सर. ओके, सो कभी कभी ये होता है कि इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, सो इंटरनेट ऑन करके ये चीज मींस ये प्रोजेक्ट को सिंक किया करो जब ड्रॉ नेविगेशन लोगे. कल मेरा होने सर आ गया मैम, फिर रात में सो गया. हेलो मैम. अच्छा ठीक है, ओके, नॉट एन इशू. सो वो चीज करो, फिर दिक्कत नहीं होगा. आई होप सो. ओके मैम, ओके, फिर से मैं करता हूँ मैम. ओके मैम, ओके. हाँ, हेलो मैम. सौरभ. हाँ सौरभ, यस सौरभ. मैम हमको मैम हमको मतलब फॉरगेट पासवर्ड जैसे करते हैं ना. हेलो. तो मैम हम मेल में ओटीपी सेंड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? मेल में ओटीपी नहीं, लिंक जाएगा, लिंक. ओटीपी नहीं, ओटीपी भी तो आता है. लिंक जाएगा, हम बोल रहे, दिखा रहे, 1 मिनट.
Yeah, this one. This is basically the code. Send password reset email. हेलो यस मैम। हाँ मैम दिख ये रहा है? काम कैसे करेगा? तुम लोग का तुम्हारा जो ऑथेंटिकेशन है डॉट पासवर्ड रिसेट ईमेल, तो वो ईमेल में जो भी ईमेल आईडी होगा उस ईमेल में एक लिंक चला जाएगा, लाइक ओटीपी या लिंक सॉर्ट ऑफ चला जाएगा, जिसको क्लिक करने में तुम रीसेट पासवर्ड को रीजेनरेट कर सकते हो। याद है क्या? पता नहीं, हम एक बार किए थे कि रीन्यू, हम पासवर्ड भूल गए थे तो रिन्यू करके ईमेल से रीजेनरेट कर लिए थे, न्यू पासवर्ड क्रिएट कर दिए थे। ईमेल में लिंक जाएगा तो मैम मेल में क्या फॉरगॉट पासवर्ड का ये जाएगा, मेल जाएगा? हाँ, ईमेल में मिल मेरा जाएगा। मैम फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक फॉरगॉट जाएगा। पासवर्ड का मिल जाएगा, यस, जहां से तुम जनरेट कर सकते हो पासवर्ड को, नया और पासवर्ड फिर उसको लॉगिन में फिर वो उसको ये लॉगिन कर के देंगे लिए ना? यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, यूज कर सकते हो लॉगिन के लिए। और मैम जैसे फोन में ओटीपी आता है ना, वो कैसे आता है? हाँ, फोन में ओटीपी के लिए तो फोन का तो एक्टिवेशन करना पड़ेगा। जैसे ईमेल एंड पासवर्ड एक्टिवेशन है, वैसे फोन का एक ऑप्शन था, शायद तुम देखे थे, तुम लोग बोले तो थे एक बार। यस मैम हम देखे थे। हाँ, तो वो डेटाबेस में चीज हम का देखे हैं। हाँ, वो चीज फायरबेस पे। ऑथेंटिकेशन में, हाँ ऑथेंटिकेशन में, सो वो चीज को एनेबल करके फोन का जो कोड है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। फोन का जो कोड है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर फोन में ऑथेंटिकेशन वो सब जाएगा। तो मैम अगर रैंडम जो ओटीपी जाता है वो क्या अपने जनरेट करता है फायरबेस, या फिर करवाना पड़ता है? जो रैंडम ओटीपी जाते हैं उसके लिए बेसिकली जो रियल टाइम एप्स में होते हैं, ये सब ओटीपी ये सब के लिए सर्विस प्रोवाइडर से परमिशन लेना पड़ता है। उन लोग को पैसा देकर परमिशन, एक एपीआई होता है जो उन लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू ओके ये मैम। रैंडम ओटीपी ये सब होते हैं। बट तुम लोग अगर फ्रीली यूज करना चाहते हो तो फायरबेस का यूजिंग फोन नंबर, ये प्रोसेस तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो। ये प्रोसेस अगर करना है तो फोन नंबर वेरिफिकेशन मींस इंस्टेड ऑफ ईमेल पासवर्ड, हम तो ईमेल पासवर्ड से दिखाए थे ताकि वो आसान हो एंड सबको यूज कर सकते हैं। नहीं तो फोन नंबर के लिए फोन नंबर देना पड़ता है, तो इसीलिए हम ये फोन नंबर वाला ये प्रोसेस नहीं दिखाए थे। बट इफ यू पीपल वांट टू गेट इनटू इट, यू कैन फॉलो द स्टेप्स over here like this। जो वेरीफाई फोन नंबर सब कुछ सारा चीज इसमें से हो जाएगा। सो ये स्टेप्स तुम लोग को बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा टू अवेल दैट फोन नंबर पार्ट। पहले ये था मींस क्रिएट अकाउंट, रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है ये, और ये वाला ऑप्शन है साइन इन, मतलब साइन इन का ऑप्शन है ये यूजिंग फोन नंबर। जो तुम लोग को जो तरीके से तुम लोग करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, एनी वन ऑफ योर ओन चॉइस, यू कैन यूज इट। मैम हम थोड़ा अपना ये मतलब कोड बताएं क्या, कैसे हम किए हैं कुछ? हाँ बोलो, सबसे पहले बोलो मैम तुम कौन जैसे सा हम करना है, ईमेल पासवर्ड या फोन नंबर? मैम हम दोनों ही रखे हैं, ईमेल पासवर्ड भी रखे हैं, जीमेल फेसबुक भी रखे हैं, और ये भी रखे हैं, फोन नंबर भी रखे हैं। अच्छा, यूजर का चॉइस के ऊपर है। अच्छा ओके। मैम जो फॉरगेट पासवर्ड है ना, उसके लिए मैम हम अलग एक्टिविटी बनाए हैं एक तो, उसमें क्लिक होगा ना फॉरगेट पासवर्ड पे, तो एक एक्टिविटी ओपन होगा। जाएगा। उसमें मैम हम प्रोवाइड कर मतलब टेक्स्ट भी, उस एडिट टेक्स्ट प्रोवाइड करवाएंगे ईमेल,
और एक बटन यूज किए हैं जिससे वो ओटीपी या फिर लिंक जो है लिंक सेंड करवाएंगे। देखो एक चीज, हाँ एक चीज बोल रहे, फॉरगेट पासवर्ड अगर तुम्हारा ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू होगा तभी जाकर वो फॉरगेट पासवर्ड वाला काम करेगा, नहीं तो ये फोन नंबर के लिए फॉरगेट पासवर्ड वाला आई थिंक इट इज इरेलीवेंट, नहीं क्योंकि मैम, फोन तो हम नंबर। जो फोन नंबर जो है उसको तो हम मैम ऑप्शनल में रखे हैं, अच्छा ईमेल तो ओके, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो देन इट्स ओके। यस मैम। तो उस जो तो मैम जो लॉगिन के लिए जो कोड लिखते हैं हम, हम्म। तो वही कोड फिर उसमें यूज कर देंगे क्योंकि वहीं से तो नहीं लॉगिन ऑथेंटिकेट के हो रहा लिए है। नहीं, वो कोड नहीं, हम अभी कोड दिखाए ना, ये वाला कोड होगा, ये वाला दिस वन होगा, ये वाला कोड आएगा फॉरगेट मान लीजिए पासवर्ड मैम के जो, लिए। यस मैम ये कोड तो यूज करेंगे नहीं, मतलब जो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि वो ईमेल पहले से है कि नहीं, तभी ना उसमें तो वो सेंड वाला होगा। तो वेरीफाई, यूजर होगा तभी। वो तो जस्ट उसमें यूज करना पड़ेगा, वेरीफाई मींस दिस फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर डॉट वेरीफाई ईमेल, उस लाइन से होगा। अच्छा अच्छा, तुमके ओके उसके मैम, लिए तो ठीक है मैम। तुमको पूरा पूरा कोड तो लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट वो लाइन हम दिखा दे रहे हैं, और एक बार कौन सा लाइन का बात कर रहे हैं हम। I'm talking about this line, or rather this line. का क्या? This one, this one. This line will verify whether your email is verified or not. ओके मैम। तो उसके लिए पूरा तुमको ये कोड पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट दिस विल बी एनफ। हम जो कोड प्रोवाइड किए उस कोड को गो थ्रू करो, थोड़ा कमेंट्स वगैरह वो उसमें चेक करो, अपने आप पता चल जाएगा किस लाइन के लिए क्या मीन्स। हर एक टाइम ये कोड नहीं लिखेंगे, जब तुमको सिर्फ साइन इन करना होगा ईमेल पासवर्ड से तभी जाकर ये कोड को लिखो तुम। ओके नेक्स्ट क्या मैम पहले पूछो। ये वेरीफाइड करवा हाँ लेंगे कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो फॉरवर्ड पासवर्ड वाला कोड सेंड कर लिखेंगे। दो, हाँ सेंड कर दो, हाँ यस। उस हिसाब से यूजर को मैसेज भी दिखा देना जो मैसेज तुमको दिखाने हैं। और कोई क्वेरी है सौरभ? नो मैम, हो गया, यही पूछना था। अच्छा ठीक है, ओके सो नेक्स्ट श्वेता, तुम लोग का कितना प्रोग्रेस हुआ है? हेलो ओके, आई एम नॉट ऑडिबल टू श्वेता, ओके फाइन। और कौन है? Yes, ma'am. हाँ ऑडिबल, ओके। तुम लोग का प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ है? मैम वही आफ्ताब जो बता रहा था मैम, कल शाम में हो गया था, कंप्लीट हो जाता मैम अच्छा रात हाँ में, ठीक है तो वो प्रॉब्लम हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट करण, करण इज देयर? नॉट देयर, ओके अभिजीत या आदित्य कोई है? आदित्य इज देयर, आदित्य am I audible? आदित्य गुप्ता। यस मैम। अच्छा तुम बोलो कि तुम लोग का ऐप का कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है?
What is the progress of your app? मैम 40% के अराउंड बस। अच्छा 40% के अराउंड हुआ है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ मेरे को कितना प्रोग्रेस हुआ है। कौन मैम दिखाएगा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन? अभिजीत के पास है मैम, उसको बोल। अभिजीत को बोलो ज्वाइन करने के लिए। कितना हुआ है मेरे को देखने तो। और ऐप कौन दिखाएगा? ऐप जितना हुआ है उतना मेरे को दिखाओ, कितना क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तुम लोग का ऐप कौन सा बना रहे हो फाइनली? फूड ऑर्डरिंग नहीं? नो मैम, फ्यूल कौन सा? डिलीवरी। अच्छा फ्यूल, फ्यूल हाँ डिलीवरी। मोबाइल फ्यूल, हाँ हाँ हाँ। ओके, सो वो कितना परसेंट हुए है, क्या हुए है, दिखाओ मेरे को। मैम अभी कोई मैम है ही नहीं मैम, सब ऑफलाइन है। अच्छा, तो तुम लोग का कितना प्रोग्रेस हुआ है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो वो भी मेरे को नहीं पता। ओके नेक्स्ट। हेलो मैम, बोलो। बोल रहा हूँ मैम, एक प्रॉब्लम हो रहा था। जो सबसे ऊपर जो मैंने जो एप्लीकेशन उसको आप इंस्टॉल कर पाए थे? मैनेज एप्लीकेशन? मैं जो मैनेज एप्लीकेशन सेंड किया था कल, नहीं मैं कल एप्लीकेशन सेंड किया था आपको, हाँ, तो उसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ ना, उसको अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे मैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक वो सेकेंड एप्लीकेशन हम नेम में था या एक सेकेंड हम देखे नहीं, एक सेकेंड उसको देखने दो मेरे को। वो KNC कार्ट जो लिखे थे वो? Yes, ma'am. KNC कार्ट, उसको क्या करना है तुमको? दूसरा नाम डालना है या क्या करना है? मैम रिमूव करना था। तुम लोग ये नाम नहीं रखना चाहते हो मतलब? मेरे को समझ। नहीं एक मैम, जो सेकेंड साइड में ऊपर में आ रहा था मैम टॉपिक। एक सेकेंड। अच्छा, लॉगिन पेज में जो KNC कार्ट जो आ रहे हैं वो वाला बोल रहा हूँ। यस। अच्छा, तुम लोग क्या ये ऐप बार रखना चाहते हो या ऐप बार पूरी तरीके से हटाना चाहते हो? क्या चाहते हो पहले वो बताओ। हम रिमूव करना चाह रहे थे। पूरा ऐप बार अगर पूरा ऐप बार को रिमूव करना है तो नो एक्शन बार वाला जो स्टाइल लगाए थे वो चीज इधर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो इंटायर ऐप बार हट जाएगा स्क्रीन से। ओके मैम। अगर किसी को कोई कोड दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई डाउट हो रहा है तो दिखा सकते हो, हम तुमको प्रेजेंटर बना देंगे, तुम लोग शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन। अगर तुम लोग को कोई कुछ पूछना है कोई या कुछ दिखाना है तो यू कैन सी इट। अच्छा नेक्स्ट, कुणाल तुम लोग का कितना प्रोग्रेस हुआ है? कुणाल, प्रतीक, ऋषभ, खातिफ, सूरज, what is the progress of your app? बना रहे हैं मैम। बना रहे वो तो मेरे को भी पता है,
कितना क्या हुआ है वो तो दिखाओ मेरे को, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कितना बना है। वो मैम सूरज के पास है। सूरज के पास है, ओके। सूरज, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? यस मैम, रेडी कर रहे हैं। कितना बना है? हाँ बना है मैम, 2-3 पेज बना है। अभी हाथ से लिखे हैं, टाइप नहीं किए हैं। हाथ से लिखे? हाथ से क्या लिखना है? हाथ से कुछ नहीं लिखना है, हाथ से कुछ नहीं लिखना है। जो भी लिखना है एमएस वर्ड में लिखना है, और फाइनली मेरे को जो सबमिट करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यस मैम, पीडीएफ में ही भेजेंगे, एमएस हाँ, डॉट में। ठीक है। हाथ से क्या लिख रहे हो? हाथ से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है वो मैम। तो हम पेन एंड पेपर में, वो तो हम ब्लूप्रिंट को ड्रॉ करने के लिए बोले थे, थोड़ी हम हाँ वही सब रेडी डॉक्यूमेंटेशन कर को रहे हैं। बोले। अच्छा, और प्रोजेक्ट कितना बना है कुणाल? मैम अभी तो ज्यादा बनना है, अराउंड 20-30% होगा। 20-30% होगा, अच्छा। ये क्या बोलते हैं, तो मैम मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर से मेरे को मतलब स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए तो मैम तुम ही बना रहे हो क्या? दूसरा और कोई नहीं बना रहे? और प्रतीक बना रहा है मैम। अच्छा, प्रतीक और तुम मिलकर बना रहे हो, ओके। तो क्या तुम लोग कौन सा ऐप बनाओगे बोले थे लास्ट में? फूड ऑर्डरिंग ऐप में। फूड ऑर्डरिंग। तो फूड ऑर्डरिंग का मीन्स क्या क्या डालोगे, वो प्लानिंग हो चुके हैं? यस मैम। अच्छा, तो उस हिसाब से बनाओ। और तो टाइम नहीं, आज वेडनेसडे हो गया, कब करोगे? बना ही रहा हूँ। Don't waste the time. Okay, next, Nitesh and Pradeep. Pradeep या Nitesh कोई है? No one is there. Karan, Chandni, Sonali, Soni. Anyone is there? Karan, Chandni, Sonali, Soni. I guess this is Sonali Bharti, if not wrong. या Sonali Kumari कौन? नहीं, भारती होगा। Sonali, can you hear me? सिंपी, तुम किसकी टीम में हो? अच्छा, रश्मि की टीम में ना। Sonali, am I audible? Sonali Bharti, am I audible? Hello? Hello, Sonali, am I audible?
हेलो ओके, बाकी किसका क्या डाउट है और पूछो। कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है वो दिखाना है तो दिखाओ, और किसका क्या डाउट है, किस पर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है वो चीज पूछ लो मेरे से। डॉक्यूमेंटेशन में और किसी को कुछ पूछना है? जो आई होप जितना भी डाउट था वो हम डॉक्यूमेंटेशन में सिंपली पूरा पूछ ली, बट फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन। Any query you people have? There is any query from your end? Facing any difficulty? कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो पूछ लो। अच्छा, तुम लोग को हम ग्रुप वाइज जीमेल अकाउंट क्रिएट करके फायरबेस यूज करने बोले थे, सो हैव यू क्रिएटेड दैट? मैम दोबारा से मैं ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा उसके लिए ना फिर? नहीं, हम बोले थे ना कल की ग्रुप वाइज बना यस लो एक मेल आईडी, मैम बोले थे। इजी होगा। हाँ, तो वो बनाए थे तुम? नहीं मैम अभी तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है तो उसका अभी जरूरत नहीं पड़ा है ना। सो होगा तो फिर देखते हैं। तुम लोग का तो तुम लोग को तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोग का प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फायरबेस तो यूज करना ही पड़ेगा तुम लोग को। तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी से यूज नहीं कर सकते मैम? पर्सनल ईमेल आईडी से यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी के फ्रेंड्स तुम लोग को, उन लोग को अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम पासवर्ड ईमेल आईडी का पासवर्ड शेयर करोगे उन लोग के साथ? अच्छा ये बात है, समझ गया मैम समझ गया। इसीलिए हम बोले थे कि एक कॉमन मेल आईडी क्रिएट कर लो, तो उससे प्रोजेक्ट करोगे तो हर किसी के पास, जो भी तुम्हारे ग्रुप मेंबर है उन लोग के पास पासवर्ड होगा, तो बाद में भी अगर उन लोग को यूज करना पड़े या देखना पड़े, दे कैन यूज इट ना। ओके मैम ओके मैम। अब मान लो जैसे अगर मैनुअली कुछ क्रिएट करने हैं डेटाबेस में, तुम अगर कोडिंग के पार्ट कर रहे हो, दूसरा कोई वो डेटाबेस का पार्ट कर सकते हैं इन बिटवीन, बट पर्सनल ईमेल आईडी से होगा तो तुमको ही सब कुछ करना पड़ेगा, दे कांट डू इट ना। ओके मैं नया से क्रिएट करके ही करूंगा मैं समझ गया मैं। तुम करो या दूसरा कोई कर ले, कोई मीन्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुमको ही करना पड़ेगा, कोई भी तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स कोई भी करके यूज कर सकते हो तुम लोग को। वैसे आई थिंक वो इजी होगा तुम लोग के ग्रुप के लिए, ग्रुप वाइज, सिंस इट इज अ ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट, 1:1 तो है नहीं, इसीलिए बोले।
ओके, नीतीश और प्रदीप कोई है? नो वन इज देयर। तुम लोग को इंडिविजुअली किसी को कुछ पूछना है प्रोजेक्ट, आई मीन जो भी कवर अप हुए हैं क्लासेस में, उसकी बहुत जन क्लास को डेली अटेंड नहीं करके रिकॉर्डिंग देखी हो या ऐसे की हो, तो तुम लोग को कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेरी है, ऐसा कुछ है कि वो स्टेप्स दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा है, या कुछ ऐसा कुछ है तो बोल सकते हो। आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन। ऐसा कोई क्वेरी है क्या तुम लोग के एंड से? किसी को कोई डाउट नहीं है? तुम लोग को क्लास में डाउट नहीं रहता? क्लास जब कंप्लीट हो जाते हैं तब फोन कॉल या मैसेजेस आता रहता है मेरे पास। अच्छा, एक चीज बोलना चाहते हैं, सेकेंड पेज डॉक्यूमेंटेशन का सेकेंड पेज जो है, उसमें देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट एक पोर्शन है, चेक करो। रिपीट, डॉक्यूमेंटेशन का जो सेकेंड पेज है, सर्टिफिकेशन जो पेज है, उसमें एक प्लेस है जहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करना है। So I hope you people know what will be the start date and what will be the end date. Yes or no? Hello.
Ma'am, start date would be 1st of Feb, no? 1st of Feb, or last date will be means end date will be 5th of March. Start will be 1st of Feb and last will be 5th of March. और उसमें एक जगह और एक है कि ग्रुप मेंबर्स का नाम, तो तुम लोग अगर चाहते हो सर्टिफिकेशन पेज एक एक जन का नाम देकर एक एक पेज लगा सकते हो सर्टिफिकेशन पेज, नहीं तो एक ही सर्टिफिकेशन पेज में सबका नाम मेंशन कर सकते हो कॉमा कॉमा देकर, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। जो भी तरीका इजी लगे वो तरीका तुम लोग यूज कर सकते हो। तुम लोग के क्लास का सीआर कौन है? Saurav and Rashmi. अरब और रश्मि, ओके। अच्छा, तुम लोग जितना जन इधर इसमें हो प्रोजेक्ट में हो सब कोई ग्रुप में हो? आई डोंट थिंक। जितना जन एनरोल किए हो सब कोई ग्रुप में हो? अगर ऐसा कोई है कि तुम लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड मींस आफ्टर एंडिंग द सेशन आल्सो अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्टिफिकेट या कुछ रहेगा तो वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो इसीलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर कोई ऐसे हो कि ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो ग्रुप। तुम लोग का और कोई क्वेरी है क्या? नहीं तो इस सेशन को एंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेरी नहीं है तो सेशन को एंड कर सकते हैं। अगर तुम लोग का कोई क्वेरी है या कुछ कोड या कुछ दिखाने है कि मैम इसमें दिक्कत हो रही है या कुछ, तो फिर दिखा सकते हो मेरे को, हम प्रेजेंटर बना रहे हैं, यू कैन शेयर योर स्क्रीन और वो चीज दिखा सकते हो। Sonali, am I audible to you now? Sonali.
कुणाल, तुम लोग को कोई डाउट है कोड्स या किसी में कुछ पूछना है कुणाल? अभी तो मैम ऐसा कुछ पूछना नहीं है। मीन्स कुछ बनाए हो, मीन्स कुछ बनाए ही नहीं हो, ट्रूली मेरे को रिप्लाई दो। मैम स्टार्ट किए हैं बट अभी मतलब मिड पे भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए तो प्रॉब्लम भी आएगा तो मैम डेटाबेस यूज करेंगे, उस टाइम में भी हो सकता है। वो इसीलिए तो जल्दी जल्दी करने बोल रहे, क्योंकि टाइम तो ज्यादा बाकी नहीं है ना। डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहा है तुम लोग का? सूरज? यस मैम। अच्छा, सो सूरज तुम भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को सही सही, जैसे जैसे आज टॉपिक डिस्कस हुए डॉक्यूमेंटेशन का, उस सही सही सब कुछ कवर करके वो कर लो, क्योंकि कल हम प्रोजेक्ट तो देखेंगे कितना क्या हो रहा है, कितना कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, वो सब चीज तो कल देखने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो है वो चीज जो भी डिस्कस करना है रिलेटेड टू ऐप या कुछ, वो कल तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। तो मीन्स कल ही लास्ट टाइम है डिस्कस करने के लिए, और जो भी शेयर करने, जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने, कल ही लास्ट टाइम में, क्योंकि परसों तुम लोग का सबमिशन है तो और टाइम नहीं मिलेगा। सो आई एम सेइंग रिपीटेडली कि इतना लाइटली मत लो, मीन्स डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द थिंग्स। तुम लोग को अभी टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, use it, don't lose it. क्या और कुछ पूछना है या इस सेशन को इधर एंड करते हैं? आफ्ताब, तुम लोग को कुछ पूछना है क्या, या कुछ दिखाना है, कोई प्रॉब्लम या कुछ?
Hello, Sonia, am I audible? Yes, ma'am. तुम लोग का कितना प्रोग्रेस हुआ है डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट में? मैम प्रोजेक्ट में तो अभी कोडिंग कर ही रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन में इंट्रोडक्शंस जो फर्स्ट कंटेंट में है ना तो वो अभी आधा हुआ है। अच्छा, और कोडिंग कितना हुआ है, मतलब ऐप का प्रोग्रेस कितना हुआ है, कितना दिखा पाओगे मेरे को भी? मैम हाफ ही हुआ है बट अभी शाम तक में भी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो जितना हुआ है उतना दिखाओ मेरे को, कितना क्या हुआ है दिखते हैं फिर। डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज ऐप कौन दिखाएगा, बोलो तुम ही दिखाओगी क्या? हम उसको फिर प्रेजेंटर बनाएंगे। ओके मैम। Will I make you the presenter? Are you ready for it? मैम थोड़ा लेट लगेगा बस अभी हम फोन से कनेक्टेड है, लैपटॉप ना वो कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, okay. Then inform me accordingly. ओके मैम।
हेलो। हाँ बोलो। यस सोनी। मैम क्या मैं फोन का बैक कैमरा से दिखा सकती हूँ? बैक कैमरा से वो दिखेगा? ट्राई कर सकते हैं। ओके, आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर। ओके मैम। हेलो मैम। यस मैम मैम यस। धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हाँ धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैम। डॉक्यूमेंटेशन में मैम बेसिकली क्या मतलब कितना पन्ना का रहेगा मिनिमम? मिनिमम तो वैसा कुछ नहीं है, जितना होना चाहिए वैसा होगा। और लेस 30 एंड अबव तो होगा ही शायद। ना 30 एंड एबव तो 30 एंड एबव तो नहीं जाएगा मेरे को लगता है मैम। 10-15 पेज में तो 10 पेज बहुत होते। 10 पेज बहुत होगा? इतना कुछ 10 पेज में हो जाएगा? कोडिंग, स्क्रीनशॉट्स, देन डायग्राम, सब कुछ 10 पेज में हो जाएगा तुम्हारा? सब चीज का देना है हमको या खाली वो देना है मैम? क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्यों, में तुम खाली लोग बताना है कि फॉर्मेट नहीं मिला है क्या? फॉर्मेट नहीं मिला है? मिला है मैम। मैंने देखा नहीं है फॉर्मेट को अभी तक। नॉर्मल में एक तो बार नजर देखना खोल चाहिए के था, देखना एक चाहिए नजर था। में देखा तो बिफोर आस्किंग मी द क्वेश्चन यू शुड हैव चेक्ड आउट। एक नजर देखा था तो मैंने देखा कि बेसिकली उसमें जो चीज लिखा हुआ था 77 पन्ना का था। ठीक है, तो हम सोचे कि मैम से एक बार पूछ लूं कि कितना कम से कम में जितना हो सके तो करके दे देंगे। 27 पन्ना का था? हम फॉर्मेट में 77 वैसा कुछ 27 पन्ना का वैसा तो 77 कुछ हम पेजेस। शेयर नहीं किए। 77 पेजेस मैम, 77 पेज। एक ग्रुप में कुछ आया था कल रात को, मैंने देखा था। अभी क्या था नहीं पता, लेकिन मैंने इसे देखा था तो उसका पेज 77 था। आप ही के द्वारा डाला गया था। एक मिनट रुकिए। आई एम नॉट श्योर ऐसा कुछ हम डाले थे बोलकर, तो आई एम नॉट श्योर। और मैम अभी ओके हम बाहर है, सोनी, घर शेयर जाके। योर स्क्रीन। हाँ ठीक है मैम, मैं घर सोनी, जाके मैं शेयर आपको योर भेज दूँ। स्क्रीन। Nothing has been readable. कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिख रहा है। मैंने ट्राई। तुम लैपटॉप से गो टू मीटिंग में कनेक्ट करो, कनेक्ट करके फिर दिखाओ। ओके मैम। वॉइस ब्रेक हो रहे। हेलो। यस मैम। हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। लैपटॉप में गो टू मीटिंग कनेक्ट करके फिर उधर से दिखाओ। ओके मैम।
तुम ब्राउजर से ही गोटो मीटिंग को ओपन कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप में। Name done. Once you're ready, say it to me. I'll share your. I'll make you presenter. मैम कनेक्ट हो गया है। ये है क्या? यस मैम। इको क्यों हो रहा है साउंड? मैम नहीं पता। अच्छा, Karan is also there with you. मैम Really echo हो रहा है। Okay, presenter बना चुके हैं, शेयर करो स्क्रीन। Hello, Sony, you are presenter now. You can share your screen. मैम स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ही ऑफ है। कौन सा शेयर करने, करण का सिस्टम या तुम्हारा सिस्टम? तुम जहाँ से लॉगिन किए हो वो या करण 1? So same that. ओके मैम। Now check it out. You will get an option. यस मैम। Are you getting the option? या अभी तक नहीं मिला? यस मैम मिला। योर एंटायर स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो एंड क्रोम टैब। अभी तक विजिबल नहीं है। मैम अब विजिबल है? Not yet. अब हुआ। ओके। अच्छा, तुम लोग मीन्स डायरेक्टली जो मीन्स तुम मेरे को शायद सेंड की थी, तुम या कौन सेंड किया था मेरे को कल? ब्लूप्रिंट एक। मैम कल एक हाँ वो ग्रुप से मेरे सबको सेंड किया था। कोई मेरे को पर्सनल मैसेज में सेंड किया था, मेरे को नहीं पता कौन है वो। I don't know exactly who is that person. यस मैम। कोई मेरे को सेंड किया था कि ब्लूप्रिंट जो है
तो ये मेन एक्टिविटी है, इसमें से इमेज ना। फर्स्टली आई वांट टू आस्क कि इमेज तुम लोग कहाँ से ले रहे हो? मैम वो नेट से यूज करके। नेट से यूज करके मतलब कहाँ स्टोर किया हुआ है? मैम क्या इमेज व्यू का ऑप्शन आया था तो उसमें हम लोग ने एक नाम से सेव था अवतार करके, उसको सेव किए थे तो फिर उसी को वहां से पेस्ट किए। नहीं वो तो ठीक है, ये वाले इमेज मान लो शेयर, बट हम तो चाहते कोई भी इमेज हम शेयर करना चाहते हैं, मान लो कोई भी इमोजी सॉर्ट ऑफ शेयर करना चाहते हैं, सो फ्रॉम वेयर आई विल गेट दैट सोर्स? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इमेज? क्या फायरबेस, क्या कोई पर्टिकुलर एपीआई साइट, या फोन तुम्हारा मोबाइल फोन इटसेल्फ? व्हाट इज द सोर्स? इमेज का सोर्स क्या होगा वो पूछते हैं। मैम मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन से तो गैलरी या कैमरा से, मींस नॉट कैमरा ऑब्वियसली, गैलरी या कहीं से, मींस गैलरी से रिट्रीव करोगे या फाइल मैनेजर से रिट्रीव करो? हेलो यस मैम, वो कनेक्शन नेटवर्क तुम कनेक्शन इशू था इसीलिए नहीं सुना। सुनो 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 सुनो, लिसन वन थिंग, तुम एक काम करो, करण का जो लैपटॉप है उधर से ऑडियो को डिसेबल कर दो, तुम ऑलरेडी कनेक्टेड हो तुम्हारे फोन से, उधर से बात करो तो इतना दिक्कत नहीं होगा। ओके मैम। हाँ तो अब सुनाई दे रहे हैं? ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर दो, करण के लैपटॉप से ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर दो। मैम ऑडियो तो म्यूटेड है। म्यूट है लेकिन डिस्कनेक्टेड नहीं है। रुको मैं वेट। ओके बोलो, अब सुनाई दे रहे है मेरा बात? यस मैम। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं, तुम लोग सबसे पहले जब ऐप आइकन में कोई क्लिक करेगा तो कौन सा पेज या स्क्रीन कौन सा सबसे पहले ओपन? मैम डायरेक्ट ओपन होगा हमारा मिनीज का स्क्रीन, जिसमें ढेर सारा मिनीज का पोस्टर्स होगा। अच्छा, ये पोस्टर्स का मींस कैसा, मतलब वो सिंगल पोस्टर डायरेक्ट रहेगा या मल्टीपल? सिंगल सिंगल या मल्टीपल यस रहेगा, जिसमें कैटलॉग सॉर्ट ऑफ रहेगा, कैटलॉग से चूज करना पड़ेगा, क्या रहेगा? तुम लोग का थिंकिंग सही है, बट इम्प्लीमेंटेशन मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। प्लानिंग मींस आप अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन मेरे को लग रहा है उसमें गलती हो रहा है, तो इसीलिए पूछ रहे एग्जैक्टली किस तरीके से, व्हाट इज द प्रोसेस, वो बताओ मेरे को। मैम सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे ना तो ढेर सारा इमेजेस आएगा मीम का। हाँ, मीम का जो इमेजेस आएगा, एक इमेज आएगा या मल्टीपल इमेज आएगा? मींस एक ही इमेज क्या सब कोई शेयर करेगा, या जो इमेज यूजर चाहते हैं वैसा कोई इमेज? यस मैम, जो यूजर चाहता है उस टाइप का, मतलब ढेर सारा इमेजेस रहेगा, वो जो चाहता है वो चीज को वो शेयर कर सकता है, या फिर वो एडिट करना अच्छा चाहता है उसमें तो वो एडिट भी कर सकता है। ओके,
तो अगर वैसा मीन्स वैसा कुछ है तो वो बहुत सारे इमेज कैसे डालोगे? सिर्फ इमेज व्यू से क्या बहुत सारे इमेज डाल पाओगे? नो मैम, इमेज व्यू से उस तरह से नहीं। अगर कोई क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए वो क्रिएट कर सकता है, और अगर वो डायरेक्ट शेयर करना चाहता है देख के, तो उसके लिए वो हम लोग उसको ब्राउजर से कनेक्ट कर दें, ताकि वो जितना भी मीनिंग का जितना भी रहता है पोस्टर, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके स्टोर रहेगा। सो तुम लोग इधर से तुम्हारे ऐप में ब्राउजर कनेक्ट कर रहे हो? अभी तक तो ऐसा कुछ किए नहीं, अभी बस स्टार्टिंग ही किए हैं। हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि मीन्स मेरे को इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा गलती लग रहा है तुम लोगों को, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। मीन्स टाइम ज्यादा नहीं है, अगर गलती करोगे तो रेक्टिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए पूछ रहे। प्लानिंग मतलब प्लानिंग जो है वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए हम बार बार पूछ रहे क्या प्लानिंग है, सही सही वो चीज कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या व्हाट इज द प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस सही सही कर रहे हो या नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं। व्हाट इज अबाउट volley.java? मैम हम लोग जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट हम थोड़ा देर के बाद उसको पूरा अच्छे से क्लियर करके बता सकते हैं क्या? ठीक है, बट ये volley.java क्या है? चेक, शो मी दिस फाइल volley.java। तुम लोग के ग्रुप से किसी को एंड्रॉयड पहले से आते हैं क्या? नो मैम। ये volley.java फाइल में क्या करना चाहते हो तुम लोग? मैम वो अगर कुछ नहीं किसी था, वो चीज बस का नहीं, हम बोल रहे कुछ, अगर कोई वीडियो का रेफरेंस ले रहे हो या कुछ ले रहे हो तो देख लो वीडियो कैसे है, क्या है नहीं है। अगर एक्सटर्नल एपीआई कुछ यूज किया गया है जो मेरे को लग रहा है तुम लोग यूज करने वाले हो, बट एपीआई नहीं रहेगा, एपीआई सोर्स अगर नहीं पता है तो ये यूज करना एकदम वेस्ट ऑफ टाइम होगा तुम लोग के लिए। हम वॉली ओके मैम। नहीं दिखाए तुम लोगों को क्योंकि वॉली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस है, उसके लिए एपीआई चाहिए होगा। एंड आई डोंट थिंक तुम लोग को एपीआई बनाना किसी को आता है। अगर आता है, हो भी सकता है किसी को शायद आ सकते हैं, बट शायद पूरी तरीके से कितना क्या आते हैं वो नहीं पता है। एंड दैट टू तुम लोग को सर्वर क्या होगा उसके लिए हम फायरबेस दिखाए, क्योंकि फ्री सर्वर अभी मिलेगा नहीं, एवरी सर्वर इज अ कॉस्टिंग वन। तो इसीलिए हम तुम लोग को ऑनलाइन फ्री सर्वर के लिए फायरबेस हम तुम लोग को दिखाए। पर तुम लोग अगर कोई एपीआई वगैरह यूज करना चाह रहे हो, वो एपीआई क्या है, कहाँ है, फ्रीली यूज कर सकते हो तो तभी उसको इंक्लूड करो, नहीं तो यूजर्स ऑफ वॉली इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके मैम, हम बस ट्राई कर रहे थे, बट अगर ऐसा होगा तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि रिक्वेस्ट क्यों, हम जब भी हम वॉली क्लास देखे तभी मेरे को स्ट्राइक किया, मे बी यू पीपल आर यूजिंग एपीआई फॉर्मेट। रिक्वेस्ट क्यू, यस मैम। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट फॉर्मेट इज ऑल अबाउट एपीआई कॉलिंग प्रोसीडियर्स। एपीआई कॉलिंग प्रोसीडियर्स अगर आते हैं, अगर यूआरएल जो प्लेस है, यूआरएल के जगह अगर तुम लोग के पास प्रॉपर अपना यूआरएल है तभी जाकर ये दे सकते हो, नहीं तो देना बेकार है, हो जाएगा, वो एरर्स बाद में थ्रो करेगा। यस मैम, ट्राई कर रहे थे तो हुआ था ऐसा कुछ। तो इसीलिए बोल रहे थिंक ओवर इट, मीन्स प्लानिंग, मीन्स दिस ऐप इफ यू वांट टू बिल्ड इट्स ऑल राइट। तुम लोग खुद से कुछ इमोजी सॉर्ट ऑफ स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, बेटर आइडिया हम बोल सकते हैं। फायरबेस में स्टोर करो, हार्ड कोडेडली कुछ इमोजी स्टोर करो, मीन्स मेमीज यस मैम। स्टोर करो स्टोरेज में, उसका लिंक दे दो क्लाउड स्टोरेज या फायर स्टोर में, कैटलॉग सॉर्ट ऑफ बना दो, यूजर को जो दिखेगा अब यूजर उसमें क्लिक करके शेयर कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं फॉर समथिंग और एनीथिंग, और अपलोड कर सकता है ना इमेज। ऐसा कुछ करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड दैट विल बी इजियर आल्सो, आई थिंक मैम, सो। मैम इस ऐप के लिए क्या जरूरी है लॉगिन पेज क्रिएट करना? आई डोंट थिंक सो।
फ्री कोई अगर चाहते तो कर भी सकते हैं, या मतलब फ्री इमोजीज जैसे होते हैं ना, कुछ फ्री इमोजीज आते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह के लिए, यस मैम। जो फ्री इमोजीज हम लोग यूज करते हैं, वैसे अभी कर सकते हैं, लाइक दैट आल्सो यू कैन डू। बट मैम हाँ, और डेफिनेटली अगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा। क्लाउडली सर्वर या किसी मतलब कोई यूज करना है तो डेफिनेटली फायरबेस यूज करो। एपीआई तुम लोग को आता नहीं है, क्रिएट नहीं कर पाओगे एपीआई सही सही क्रिएट करके सर्वर नहीं मिलेगा तो तुम लोग को अगर कोई सर्वर है तो फाइन, अगर सर्वर नहीं है तो एपीआई रखना मुश्किल हो जाएगा एंड उसको रेलिवेंट कोड लिखना मुश्किल हो जाएगा। मैम एक पूछना था आपसे। हाँ बोलो। मैम डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो, क्योंकि मीन्स स्टार्टिंग में सिंपली पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूछ ली मेरे को, क्या कहा क्या करना है नहीं करना है आज ही पूछिए, तो इसीलिए तुम लोग उस टाइम कोई ज्वाइन नहीं की थी, तो बोलो क्या पूछना है। मैम डॉक्यूमेंटेशन तो रेडी कर रहे हैं बट उसमें ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ है, मतलब कि मीम के बारे में जो है वो पूरा डिटेल्स मीम के बारे में लिखना है या फिर उसकी ऐप का में जो भी चीज कर रहे हैं या उस तुम चीज के ऐप बारे के में। बारे में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऐप का क्या है, ये मिम ऐप जो तुम कर रहे हो, मीन्स तुम लोग कर रहे हो, तो ये ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज मीम, कैसे मीम आया, इसका हिस्ट्री, सिविक्स, वो सब नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग, द स्कोप ऑफ योर ऐप, द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू योर ऐप दैट यू आर बिल्डिंग। ओके मैम। एंड डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है वो उसको भी इंक्लूड कर देंगे उसमें क्या, बस हम लोग लॉगिन पेज जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। डेटा फ्लो डायग्राम तुम्हारा जो प्रोसीडियर्स है उसके ऊपर है, मे बी तुम्हारा लॉगिन स्क्रीन या साइन अप वो प्रोसीडियर्स नहीं है, हो भी सकते हैं। बहुत सारा ऐप है कि जिसमें बोलते हैं कि विदाउट क्रिएशन ऑफ अकाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अमेजन वगैरह, अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी है, बिना अकाउंट क्रिएट करके बिना अकाउंट क्रिएट किए भी हम लोग देख सकते हैं क्या अमेजन प्रोवाइड कर रहे, क्या फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर रहे, उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना जरूरी नहीं है। तो सिमिलरली ओवर हियर तुम लोग बिना अकाउंट क्रिएट किए, आई मीन बिना साइन अप साइन इन लॉग इन ऐसा क्रिएट किए, जस्ट मेम शेयरिंग ऐप बना रहे हो, सिंपल, वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओके मैम। मैम क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आपको पर्सनली भेज सकते हैं? हाँ, definitely you can send me personally or you can show me tomorrow also। इसीलिए मेरे को तुम लोग जब ये पॉइंट बोले थे मेरे को कुछ हद तक मेरे को डाउट हुआ था कैसे तुम लोग क्या करोगे नहीं करोगे, क्योंकि मेरे को जो ब्लूप्रिंट मिला था उसमें से मेरा कुछ क्वेरीज था, बट हम जानबूझकर वो क्वेरी उधर प्लेस आउट नहीं किए थे, because I want to show what's the progress, how you are doing progressing your app। but तुम लोग अभी जो मेरे को दिखा प्रोग्रेस पूरा, I mean the technique, the procedures that you are using is incorrect one। इस प्रोसीडियर से अगर करोगे तो तुम लोग को एपीआई नहीं मिलेगा और तुम लोग का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होना मुश्किल है। I mean जो ऑब्जेक्टिव से बनाना चाहते हो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा विद इन द टाइम लिमिट। ओके मैम, आज शाम तक में मैं भेज दूंगी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे कि फायरबेस यूज करो, कुछ मेमोरीज कैसे क्या अपलोड करने हैं, स्टोरेज कैसे क्या यूज करना है ना करना है, वो सब कुछ हम कवर किए हुए, तो वो चीज यूज करो। क्लाउड फाइल स्टोर नहीं तो रियल टाइम डेटाबेस कुछ एक यूज करो जहां से तुम रिट्रीव करके रिलेटिव लेआउट, सॉरी रिसाइकलर व्यू या जैसे भी ग्रिड फॉर्मेट या लीनियर फॉर्मेट जैसे भी हो, मेम का कैटलॉग क्रिएट करो और उस कैटलॉग में क्लिक करके उसका रेलिवेंट मेमोरीज को अवेलेबल करो यूजर को, जिस पे क्लिक करके यूजर शेयर कर सकते हैं या दूसरा कुछ चेकआउट या जो भी करने हैं वो कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके मैम। उसके लिए मल्टीपल एक्टिविटी भी चाहिए नहीं होगा, 2 या 3 एक्टिविटी से शायद तुम लोग का काम बन जाए।
ओके मैम, ट्राई करेंगे। तो हाँ, तो उसके लिए ये इमेज व्यू जो ये लिखे हो, ये चीज को हटाकर रिलेटिव लेआउट लगाओ, रिलेटिव बोल रहे, रिसाइकलर व्यू लगाओ, रिसाइकलर व्यू लगाकर आइटम्स क्रिएट करो। दैट विल हेल्प यू आउट। ओके मैम। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तुम लोग को समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, एंड आई थिंक दैट विल बी easier for you people to complete also. ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, so let's end the session of up to here for the day. तुम लोग करो